بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم ان دنوں دیہات میں رہتے تھے جب میں نے اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ والد صاحب نے پڑھنے ماموں کے پاس بھیج دیا کیونکہ دیہات میں کالج نہیں تھا۔ مجھے یہاں گھر کی یاد ستاتی تھی لیکن مجبوری تھی کہ تعلیم تو حاصل کرنی تھی۔ کالج میں میری دوستی خالدہ سے ہو گئی۔ یہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا مگر والدین اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت بوسیدہ کپڑے پہن کر کالج آتی تھی۔ اس کی کتابیں بھی پرانی ہوتی تھیں تاہم خوددار اور سنجیدہ طبیعت تھی۔ اس کو صرف پڑھائی سے غرض تھی، فضول باتیں بالکل نہیں کرتی تھی۔ خالدہ ایک لائق طالبہ تھی۔ اس سے زیادہ احساس ذمہ داری میں نے کسی اور میں نہیں پایا۔ میں تو لاڈو پلی شروع سے ہی لاپرواہ طبیعت تھی، کبھی اپنا کام بر وقت نہیں کرتی تھی۔ تبھی خالدہ سے مدد لیتی، روز اس کی کاپی سے نوٹس نقل کرتی۔ اسی غرض سے میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ خالدہ کی سنجیدگی اور سادگی سب کو پسند تھی۔ غربت کے باوجود اس کی عزت لڑکیوں اور اساتذہ کے دلوں میں تھی۔ سچ ہے انسان اپنی سیرت سے چاہا جاتا ہے۔ گھر کے مالی حالات خراب ہونے کے باوجود خالدہ نے جو گریجویشن مکمل کر لی مگر اس کے لیے اب ملازمت کرنا ناگزیر ہو گئی۔ باپ بوڑھا تھا اور بھائی شادی کے بعد بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا۔ ایک چھوٹا بھائی اور بہن اسکول میں زیر تعلیم تھے لیکن ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ ایک روز اس سے ملنے گئی تو وہ بے حد افسردہ تھی۔ وجہ پوچھی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ آج ان کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ بڑی مشکل سے حالات بتائے۔ میں نے وعدہ کیا کہ ماموں سے کہہ کر تمہاری ملازمت کا بندوبست کرا دوں گی۔ میں نے ماموں سے کہہ کر ان کی سفارش سے خالدہ کو ایک اسکول میں ٹیچر لگوا دیا۔ وہ بہت مشکور ہوئی اور میرے احسان تلے دبی دبی رہنے لگی۔ ان دنوں میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ خالدہ اب ساتھ نہ تھی۔ مجھے اکیلے ہی درسگاہ جانا پڑتا تھا لیکن ہماری دوستی اب بھی قائم تھی۔ گھر قریب تھے، ہر شام کو ہماری ملاقات رہتی تھی۔ گھر سے کچھ دور ایک لائبریری تھی جس کا انچارج اوج نامی نوجوان تھا۔ وہ خوبصورت اور ہنس مکھ تھا۔ کبھی کبھار شام کو جب ہم فارغ ہوتی میں اور خالدہ اکٹھے لائبریری چلے جاتے، اپنی پسند کی کتابیں رسالے لے آتے۔ خالدہ تاریخی کتابیں لیتی کیونکہ اسے ہسٹری کا شوق تھا جبکہ میں ناول اور شعر و شاعری کی مطبوعات ایشو کراتی تھی یا پھر ڈائجسٹ وغیرہ۔ اوج کو ہم دونوں کے مزاج کا علم تھا۔ وہ ہمارے لیے خود ہی نئے رسالے اور اچھی کتابیں تلاش کر کے رکھ لیتا تھا۔ شروع میں تو میں نے اوج کی ذات میں کوئی دلچسپی نہ لی لیکن جب ہم دونوں اس لائبریری کے مستقل ممبر بن گئے تو کتابیں لیتے اور واپس لوٹاتے وقت میں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی دو چار باتیں بھی کر لیتی تھی۔ جیسا کہ بتا چکی ہوں، خالدہ خاموش طبیعت لیکن میں باتونی تھی۔ اوج نے میری اس کمزوری کو بھانپ لیا تھا لہٰذا وہ زیادہ مجھے کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس اثناء میں خالدہ کے ابو بیمار ہو گئے۔ ان دنوں اس نے میرے ساتھ لائبریری جانا بند کر دیا۔ میں اکیلی ہی جانے لگی۔ ایک روز اوج نے مجھ سے کچھ ایسی کتابوں کا تذکرہ کیا جو کہ عام لوگوں کے پڑھنے کی نہیں تھیں۔ یہ میں نے بڑی مشکل سے منگوائی ہیں اور چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، اگر تم پڑھنا چاہو تو لے جاؤ، اس نے کہا۔ میں نے کتابیں نہیں لیں، سوچا جانے کیسی ہوں، پہلے خالدہ سے مشورہ کر لوں پھر لے جاؤں گی، لہٰذا اوج سے بہانہ کر دیا کہ ابھی میرے پرچے ہیں، بعد میں دیکھوں گی۔ خالدہ کے ابو ٹھیک ہو گئے تو وہ پھر سے میرے ساتھ لائبریری آنے لگی۔ اس سے میں نے ان کتابوں کا تذکرہ کیا جو اوج مجھے سب سے چھپا کر دینا چاہتا تھا اور جو سرعام آسانی سے نہیں ملتی۔ خالدہ نے منع کر دیا کہ وہ ایسی کتابیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، ساتھ ہی کہا کہ وہ آئندہ میرے ساتھ لائبریری نہیں جائے گی۔ اس نے واقعی اپنا کہا سچ کر دکھایا اور وہ دوبارہ میرے ساتھ نہ آئی۔ مجھے خالدہ سے یہ امید نہ تھی کہ وہ اتنی سی بات پر میرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ کئی بار ساتھ چلنے پر اصرار کیا مگر وہ نہ مانی۔ کہنے لگی کہ تم بھی اس لائبریری جانا چھوڑ دو کیونکہ اوج صحیح بندہ نہیں ہے۔ اوج نے میرے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی یا غلط بات نہیں کی تھی، لہٰذا خالدہ کو سنکش سمجھ کر بات چیت بند کر دی۔ وہ یوں روکھے پن سے کام لے گی یہ تو سوچا بھی نہ تھا۔ ہر لڑکی کو ایک سہیلی، ایک سنگی ساتھی کی تو ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ خالدہ سے قطع تعلق کر لیا مگر اب خود کو بے حد تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ انہی دنوں ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی نے ایڈمیشن لیا۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ اس کا گھر بھی قریب ہے۔ نام شبنم تھا۔ میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ شبنم سے واسطہ پڑا تو احساس ہوا کہ وہ اتنی زیادہ سادہ اور سیدھی نہیں ہے جیسی خالدہ تھی، تاہم وہ مجھ سے دوستی کی خواہش مند تھی۔ اگرچہ وہ چلاک و شاطر تھی، میں نے پھر بھی اس کے ساتھ دوستی کر لی کہ یہ میری ضرورت تھی۔
खालदा के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर ही इसका हाथ थामा था। अब मैं शबनम के हमरा यूनिवर्सिटी आने जाने लगी। इसका घर हमारे ही ब्लॉक में था। जब जी चाहता शबनम के पास चली जाती और हम इकट्ठी अपना काम कर लेती। शबनम से मेरी दोस्ती गहरी होती गई, इस पर एतबार करने लगी। अगरचे वो नए ज़माने की फैशनेबल लड़की थी, मगर मुझे पसंद थी क्योंकि वो मेरी हर बात मान लेती थी। जहाँ कहती बिला चूक-चाँच साथ चल पड़ती थी, जबकि खालदा पर मुलाज़मत की ज़िम्मेदारियाँ थीं, वो मेरे साथ हरगिज़ नहीं जा सकती थी। अब हम यूनिवर्सिटी से आकर ज़्यादा वक्त साथ गुजारती, वही मेरे साथ लाइब्रेरी भी जाती क्योंकि मुझे रसालों का चस्का था। फौज ने पहली नज़र में इसे पसंद कर लिया, वो इसके साथ खुलकर बातें करने लगा। जबकि खालदा हमरा आती तो इसका रवैया हमारे साथ बड़ा मोहतात होता था। फौज की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। शबनम ने हम दोनों की दोस्ती कराने में अहम किरदार अदा किया। इसकी गैर मौजूदगी में वो ओज की तारीफ़ें करते न थकती थी। दूसरे महीनों में इसने मुझे ऐसी राह पर लगा दिया जिसका पहले कभी मैं तसव्वुर भी न कर सकती थी। अब मैं और ओज शबनम की मदद से एक दूसरे से घर के बाहर भी मिलने लगे। एक रोज़ ओज ने वो किताबें दी जिनका तज़किरा किया था। मैं इनको घर ले आई, लेकिन ये लिटरेचर पढ़ने के काबिल न था। मैं ये किताबें और रसाले देखकर दंग रह गई। मामू और ममानी के डर से दूसरे दिन ही उन्हें ओज को वापस कर दिया। अब समझ में आया कि खालदा ने ओज और इसकी लाइब्रेरी से क्यों किनारा किया था। इन्हीं दिनों घर से खत आने लगे कि जल्दी आने की तैयारी करो क्योंकि यहाँ तुम्हारी शादी की तारीख रखती है। वालिदैन ने अपने अजीज़ों में एक रिश्तेदार लड़के से मेरी निस्बत तय की हुई थी और अब वो रुखसती का तकाजा कर रहे थे। सालाना इम्तिहान हो चुका था और छुट्टियाँ थीं। मुझे हर हाल में गाँव जाना था, मगर रोज़ से जुदाई बर्दाश्त न थी। मैं किसी सूरत घर वापस जाना नहीं चाहती थी। जानती थी एक बार गई तो वापस ना आ सकूंगी। इन्हीं परेशानियों में गलता थी कि एक रोज़ वाले साहब लेने आ गए। अब घर से कदम निकालना महाल था। मैं ओज से मिलने भी नहीं जा सकती थी। एक उम्मीद बाकी थी, शबनम आ जाएगी और मेरा पैगाम ओज तक ले जाएगी। शबनम आ गई। मैंने इसे अपनी परेशानी का तज़किरा किया। वो भी परेशान हो गई और हर तरह से मदद करने को तैयार हो गई। इधर ओज मुस्तरब था कि कई दिनों से मैं घर से नहीं निकली थी। मैं इससे नहीं मिल रही थी। वो समझ रहा था कि मैं अपने गांव चली गई हूँ। वो मेरी सुनगुन लेने मामू के घर तक आ गया। हमारे पड़ोस में इसका एक रिश्तेदार रहता था। वो इससे मालूमात लेने आया था, मगर वो लोग कहीं गए हुए थे। घर पर ताला पड़ा था। वो हमारे दरवाजे के पास खड़ा कुछ सोच रहा था कि अब्बू और मामू आ गए। इसे यूं खड़ा देखकर पूछा, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो? इसने कहा, लाहौर से आया हूँ, मुसाफिर हूँ, लेकिन यहाँ ताला लगा है। इसने बंद घर की तरफ इशारा किया। ये लोग घर पर नहीं हैं, मुल्तान गए हैं। क्या तुम इनके रिश्तेदार हो? जी, ओज ने सर हिलाया। अच्छा तो आ जाओ। मामू इसको बैठक में ले आए। उन्होंने ममानी से कहा कि एक मुसाफिर है, खाना और पानी वगैरह भिजवा दो। ओज को थोड़ी देर बैठक में बैठने की मोहलत मिल गई। खाना खाने के दौरान वालिद और मामू भी वहाँ मौजूद रहे। वो आपस में बातें करते रहे। इन बातों से इसे इल्म हो गया कि मेरी शादी गाँव में है और अब अब्बू मुझे लेने आए हैं। ये बातें सुनकर वो और परेशान हुआ। तभी इसने शबनम से राब्ता किया और इसको मेरे पास भेजा। शबनम ने मुझे आमादा कर लिया कि मैं गांव जाने से कबल किसी तरह एक बार ओज से मिलूं। शाम को ममानी से कहा कि मुझे खालदा के घर जाना है। अब्बू पूछें तो यही कहना कि वो मुझसे नाराज़ है, जाने से पहले इसे मनाना चाहती हूँ। ममानी ने इजाज़त दे दी। कहा, ठीक है, जाओ, मगर जल्द आ जाना। मुझे खालदा के पास कहाँ जाना था, मुझे तो ओज से मिलने जाना था। इसके लिए भी शबनम ने मुआवनत की। मैं किसी पार्क में या खुली जगह मिलना ना चाहती थी। लाइब्रेरी में भी लोग होते थे। बैठकर बात करने के लिए कोई महफूज मकाम चाहिए था। शबनम ने तजवीज़ किया कि हम इसके कज़न की दुकान पर बात कर लें। वो बिल्कुल महफूज जगह है। ये एक फ़ोटोग्राफ़र का स्टूडियो था। वो हमारे साथ गई और अपने कज़न से बात की। इसने कहा कि ये लोग स्टूडियो के अकब में जाकर बात कर लें। वहाँ 2-3 कुर्सियाँ पड़ी थीं और कुछ दुकान का सामान रखा हुआ था। जूनी ही शबनम ने बात ख़त्म की, वहाँ अचानक वालिद और मामू आ गए और उन्होंने मुझे और शबनम को देख लिया। हालांकि हमने पर्दा चादर से खुद को लपेटा हुआ था। इनको देखते ही मैं तेज़ी से अकबी दरवाजे में चली गई और शबनम दुकान से बाहर निकल गई। अभी तक वालिद और मामू ये नहीं समझ पाए थे कि हम दोनों यहाँ क्यों आई थी। गलती तभी हुई जब ओज मेरे पीछे अकबी कमरे में चला आया। गलती तभी हुई जब ओज भी मेरे पीछे अकबी कमरे में चला आया। वालिद मेरी शादी पर किसी फ़ोटोग्राफ़र को गांव बुलवाना चाहते थे। वो तब भी फ़ोटो स्टूडियो आए थे। वालिद ने मुझे पहचान लिया था। वो डार्क रूम में आ गए और हमको वहाँ देखकर आग बगोला हो गए। बाजू से पकड़कर कुर्सी से उठा दिया और हुक्म दिया कि चलो गाड़ी में बैठो। मैं तेज़ी से दुकान से निकली और गली में मुड़ गई। मामू और अब्बू ने ओज को 2 थप्पड़ रसीद किए
वो इससे निमट रहे थे कि इतने में मैं घर जाने के बजाय खालदा के घर घुस गई। खौफ खौफ की वजह से हवास बाख्ता हो रही थी, घर कैसे जाती, अब्बू का गुस्सा जानती थी। सोचा आज तो ये मुझे गोली से उड़ा देंगे। खालदा ने हवास बाख्ता देखा तो समझ गई कि मेरे साथ कोई मामला हो गया है। क्या बात है, इतने अरसे बाद आई हो तो ऐसे जैसे तुम्हारे पीछे दुश्मन लगे हों। दुश्मन नहीं लगे, मगर अब्बू और मामू ने मुझे शबनम के कज़न की दुकान पर देख लिया है, जहाँ मैं ओज से आखिरी मुलाकात करने गई थी। ये सुनकर वो परेशान हो गई। ये क्या हमाकत कर दी तुमने, अब बताओ क्या करना है। मुझे किसी तरह बचा लो, कैसे घर जाऊं, वो तो मुझे मार डालेंगे। खालदा सर पकड़े बैठी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद इसने कहा कि तुम मुझे ओज का नंबर दे सकती हो। हाँ, मैंने लिख दिया, तो मुझे तो ज़बानी याद था। इसने कार रिसीव की और बताया कि मैं हवालात में हूँ, इनके वालिद ने मुझे थाने में बंद करा दिया है क्योंकि ये घर नहीं गई। इनसे कहीं खुदा के लिए जहाँ हैं घर जाएं। खालदा कुछ देर मुस्तरब टहलती रही, फिर बोली, मैं थाने जाती हूँ, अब्बू वफात पा चुके हैं, अब मुझे किसी का डर नहीं है। वो इसी वक्त थाने चली गई और थानेदार से कहा कि मैं ही वो लड़की हूँ जो ओज के साथ फोटोग्राफर की दुकान में गई थी। हम वहाँ अपनी एक इकट्ठी फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे और हमने शादी का फ़ैसला कर लिया है। मैं खुद मुख्तार हूँ, अपनी ज़िंदगी का ये अहम फ़ैसला कर सकती हूँ। और वो दूसरी लड़की जो मेरी सहेली साथ गई थी, इनके वालिद को यहाँ बुलवाइए, इनको कुछ गलत फहमी हो गई है। वो लड़की तो इसी वक्त अपने घर चली गई थी। इसे किसी ने अगवा नहीं किया है। मैंने अपने घर की दहलीज पार की ही थी कि थानेदार का अब्बू को फ़ोन आ गया। इसने कहा कि असल लड़की ने इकरार कर लिया है, वो हमारी तहवील में है। आप ज़रा देर को आने की ज़हमत कर लीजिए। वाले साहब तमाम मामला तो समझ गए थे, मगर अब अपनी इज्जत भी बचानी थी। उन्होंने लाख शुक्र किया कि मैं सही सलामत घर पहुंच चुकी थी, लिहाजा वो थाने चले गए। वहाँ खालदा बैठी थी। इसने वाले साहब के सामने बयान लिखवा दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, उससे शादी कर रही हूँ और हम एक यादगार तस्वीर खिंचवाने फ़ोटो स्टूडियो गए थे। आपकी बेटी मेरे साथ दुकान तक ज़रूर आई थी, फिर वो घर चली गई। अगर वो घर पर है तो साबित है कि ना इसको किसी ने अगवा किया है, ना इसका कोई तल्लक ओज से है, बल्कि ओज से मेरा तल्लक है। हम दोनों ये बयान लिखवा रहे हैं। मामू ने कहा, तुमने जो किया सही नहीं किया। मैं तो तुमको एक अच्छी लड़की समझता था। खैर तुम्हारी तुम जानो, आइंदा मेरी बेटी से कोई तल्लक वास्ता न रखना। हम इसकी शादी कर रहे हैं। खालदा एक सच्ची दोस्त ही नहीं, फरिश्ता सिर्फ थी, जिसने खुद पर पहाड़ जैसा इल्ज़ाम उठाकर मुझे बदनामी से बचाया। फिर मेरी शादी गांव में हो गई। अपने बयान को सच साबित करने की खातिर थानेदार की सरपरस्ती में इसने ओज से कोर्ट मैरिज की, क्योंकि इसी तरह ओज की जान बख्शी हो सकती थी। हालांकि वो खालदा की नज़रों में सही लड़का ना था, मगर इस लड़की ने कुर्बानी देकर इसके ख्यालात का रुख ही मोड़ दिया। ओज ने खालदा जैसी अच्छी बीवी की मोहब्बत में अपनी इस्लाह कर ली। आज मैं अपने शोहर के साथ गांव में पुरसकून जिंदगी बसर कर रही हूँ और खालदा को भी अल्लाह ने इसकी कुर्बानी का सिला दिया है। वो ओज के साथ खुश व खुर्रम है या नहीं, लेकिन वो इसके हमरा निभा तो रही है। सुना है कि बज़ाहिर दोनों पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनके 2 बच्चे हैं। खालदा की वालदा वफ़ात पा चुकी हैं, जबकि इसने छोटी बहन की शादी कर दी है और इसका भाई कमाने की खातिर दुबई चला गया था। जाने वो लौटा कि नहीं। मैं इससे शहर में राब्ता करने से कासिर हूँ और वो भी मेरे वालिद साहब के हुक्म की पाबंद है, तभी फिर कभी राब्ता नहीं किया। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको सुनने को मिलती रहें इस तरह की नई नई और दिलचस्प कहानियाँ। शुक्रिया।